हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने अभी तक रेशनल नंबर्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज को गेन कर लिया है। इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखेंगे और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके वहाँ पर देख लीजिए। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। जैसा कि आपको कॉपी में दिख रहा होगा, नंबर लाइन आपने पहले भी सीख लिया होगा हाउ टू ड्रॉ इट। आपको नंबर लाइन पे अब लोकेट करना है, तो हम लोग सिंपलेस्ट एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, दैट इज़ locating 0 on the number line. So how to locate 0? See, 0 is located at the middle one. Okay, middle point is 0. So you will locate it like this. This is 0. Okay, now if I will tell you to locate 2 on the number line, can you? Yes, this is 2. So this is 2. And let's take a negative rational number as an example also. So well, let's locate -3 on the number line. It is over here, -3. So these numbers are the very simplest examples to locate on the number line, which you have also learned in class 6 also. So यहाँ पे हमने देख लिया सिंपल रेशनल नंबर्स को कैसे लोकेट करते हैं। अब हम लोग थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाते हैं। Now you can see that I have written two rational numbers in the copy, that is 3/4 and 4/3. So are these rational numbers? You can say yes. It is in the p by q form. P and q in both the cases are integers and q is not equal to 0 in both the cases. So yes, these two numbers are rational numbers. Now can you tell me a simple difference between these two numbers? Yeah, I know it's a rational number, but there are little bit difference between these two numbers, and the difference is in the first rational number you can see that the numerator is smaller than the denominator. We call such rational numbers, or it's also called fraction, as proper fraction. We can tell it that it is a proper fraction. But in the second case, numerator is bigger than the denominator. No, 4 is bigger than 3. So it is improper fraction. Now see, first we will see how to locate proper fractions or proper rational numbers on the number line when numerator is smaller than denominator. Our example is given to us, that is 3/4. How to locate this at a number line? So first we will draw a number line. I'm not using scale over here, but you please use scale and pencil while drawing these, because marks are allotted on that basis only. It looks clear, and your diagram and your number line should be neat and clean also. So we'll locate it now. इसमें बहुत जन को प्रॉब्लम होता है कि आप लोग कैसे 1 2 3 को मार्क करोगे, क्या वो आप स्केल से करोगे, कैसे करोगे? सो आपको यहाँ पे अपने अंदाजे से equal intervals लेना है, and if you face taking intervals according to your wish, then आप यहाँ पे स्केल पे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के इंटरवल्स पे भी मार्क्स लगा सकते हो. सी, आई एम पुटिंग इट, अंदाजे से मैं लगा रही हूँ. नाउ ओवर हियर ऑल्सो -1, -2, -3. हाँ, आई थिंक ये बात तो आपको पता होगी कि अगर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा तो वो नेगेटिव साइड, दैट इज़ लेफ्ट साइड पे हम लोग का लोकेट होगा, लेकिन अगर कोई नंबर पॉजिटिव होगा रेशनल नंबर तो वो पॉजिटिव साइड में आकर होगा. तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, सो हम लोग इसको पॉजिटिव साइड में ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो 3/4. अब ये चीज़ आप लोग जान लो कि जब भी आपको ऐसा दिया रहता है, यानी कि जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस दिया रहता है, जब आपका न्यूमरेटर स्मॉल होता है डेनोमिनेटर से, तो वो आपका 0 से 1 के बीच में ही लोकेट हो जाता है. देखो अपना डेनोमिनेटर जो है ना, उसमें आप 0 to 1 को उतने डिविजन्स में डिवाइड कर दोगे. सो इट इज़ 4, तो हम लोग 0 to 1 4 डिविजन्स में इसको डिवाइड कर देंगे, और वो भी इक्वल होना चाहिए. 1 2 3 divisions I have given, so it's 4. How? 1 2 3 and 4. These are 4 divisions over here. And how you will count? You will not count this as 1. You will count this division as first division, second division, third division and fourth division. Now its numerator is 3, so we have to locate, or we have to represent the third division among these. तो कैसे लोकेट करोगे आप? देखो, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड है, और ये आपका थर्ड है. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिवीजन वी हैव टू लोकेट. सो आप इसको ऐसा पॉइंट आउट करोगे, एंड देन यू कैन राइट इट एज 3/4. दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव proper fraction or rational number on the number line. Now let's take a negative number, rational number, as our example. So let's locate -2/3. ओके, इसको आप कैसा लोकेट करोगे? सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना है. अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ यूज स्केल एंड पेंसिल
इन ड्राइंग दिस, बट आई एम नॉट यूजिंग, मुझे माफ़ करना, बट आप लोग प्लीज़ स्केल और पेंसिल ही यूज़ करना. 0 1 2 3, this one is -1 -2. ओके ना, यहाँ पे आपको -2/3 बोला है, तो ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस साइड में लोकेट होगा. 0 यहाँ पे देखो, ये मिक्स फॉर्म में नहीं है, ये मतलब न्यूमरेटर आपका स्मॉल है, तो ये आपका 0 to -1 के बीच में लोकेट हो जाएगा. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उतने डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं 0 to 1 को. यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 0 to 1 को 3 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दिस इज इक्वल. ओके नाउ यहाँ पे आपको सेकंड डिवीजन चाहिए, न्यूमरेटर सेकेंड 2 है, इसलिए यहाँ पे आपको सेकंड डिवीजन. अब यहाँ पे आप कैसा काउंट करेंगे, इसको आप 1 नहीं लोगे, आप इसको फर्स्ट डिवीजन मानोगे. दिस इज फर्स्ट डिवीजन एंड दिस इज सेकंड डिवीजन एंड दिस इज थर्ड डिवीजन. सो वी हैव टू मार्क द सेकंड डिवीजन. दिस इज आवर सेकंड डिवीजन, सो वी विल लोकेट इट in this way and you will write it -2/3. I hope it's okay. So please, we will see how to locate improper fractions or rational numbers on the number line. Let's take an example, that is 4/3. okay, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, हमने पहले क्या सीखा था कि हम लोग जो डिनोमिनेटर रहता है उतने डिविजन्स में डिवाइड करते हैं और जो न्यूमरेटर रहता है उस डिवीजन को मार्क कर देते हैं. अब आप जस्ट इमेजिन करो कि आप 3 डिविजन्स में बांटोगे. लेट्स सी 1 2 3. सपोज आपने इसको 3 डिविजन्स में बांट दिया, आपको 4 लोकेट करना. आप कैसे 4 लोकेट करोगे इस पर? इट्स नॉट पॉसिबल, नो. सो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, बट इफ़ नहीं आता है तो आप एक बार यहाँ पे देख लो. ऐसा हम लोग डिवाइड लगाएंगे यहाँ पे, फिर हम लोग 4 को अंदर लिखेंगे, 3 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 4 हमारा डिविडेंड है और 3 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा. तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल वे में, और इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में नहीं लाएंगे. ये जब हम लोग का स्टॉप हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वोशंट है, फिर ये जो 1 होता है रिमाइंडर, ये आ जाएगा आपका ऊपर में, न्यूमरेटर ये बन जाएगा, ये आपका होल नंबर बन जाएगा, और ये 3 जो है आपका, जो कि डिवाइज़र था, वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो सी it will become 1 whole 1/3. Now see, 1 into 3 are 3 plus 1 4 4/3. तो ये आ जा रहा है हमारा, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है. सो दिस इज़ द वे हाउ टू फाइंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब हम लोग इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं. दिस इज़ द होल नंबर एंड दिस पार्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, लेट मी शो यू हाउ. नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, 0 1 2 3 and over here -1 and -2. ओके, सो ये जो है ना, ये आपका जो होल नंबर रहता है उसके बाद ये प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको लोकेट करना होता है. तो ये 1 है, यानी कि 1 के बाद जो है ये डिविजन्स आपका प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोकेट कर दोगे, जैसे कि पहले कर रहे थे. तो 1 के बाद लोकेट होगा, यानी कि 1 के बाद आपको डिविजन्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, तो आप इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड करोगे, 1 and 2. See 1 2 3 divisions, and how you will count? First division, second division and third division. You have to mark first division over here. So this is the first division, so this one is our answer. You can write 4/3 or 1 whole 1/3 also you can write. Okay, but better होगा अगर आप यही लिख दो. Okay, so this is the way how to locate positive improper fraction on the number line. Let's see an example for negative also. Okay, let's take an example of -5/4. ओके, -5/4 को अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सी हाउ विल कन्वर्ट इट. नाउ यहाँ पे आया आपका ये 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 1. सो ये 1 whole 1/4, और यहाँ पे माइनस भी लगा देना है हम लोग को. -1 whole 1/4, 4 1s are 4 + 1 5, 5/4 आ गया, और यहाँ पे माइनस भी है. तो ये सिंपल है, जैसा यहाँ पे 1 के बाद लोकेट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे -1 के बाद लोकेट होगा. सी विल ड्रॉ नंबर लाइन लाइक दिस. मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग स्केल एंड पेंसिल यूज़ करना, मेरे तरह फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर देना. या अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपका लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, बट इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ड्राइंग एवरी डे रेगुलरली, देन आपका लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. सो प्लीज़ यूज़ स्केल एंड पेंसिल, इट वुड बी बेटर. ओके, सो वी हैव ड्रॉन अ नंबर लाइन. नाउ ये आपका -1 के बाद हो, तो -1 के बाद 4 इज़ द डिनोमिनेटर, तो हम लोग -1 और -2 को 4 डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे. See how 1 2 3. See 4 divisions, 1 2 3 4. First division, second division,
third division and fourth division. We have to mark first division. So this is our first division. Done. See how easy it is. I hope you have understood how to locate rational numbers on number line. And please do like and subscribe my channel if you need videos, such videos. Thank you so much.